Hello students, welcome to Gnan Manjari Vidyapeeth online education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have completed our unit number 1 and our unit number 1 is related to geography. So that's why by the last lecture we have completed geography portion and in the today's lecture we will start history portion. So let's get start the topic. Okay, so in the last lecture, we have completed our unit number 1 and our unit number 1 is related to geography. So that's why in the last lecture, we have completed our geography portion and in the today's lecture, we will move to history part we will start history portion and in the unit number 1 we will study about history. So first of all, which subject deals with the study of the past? So right answer, history deals with the study of the past. So हिस्ट्री ऐसा ब्रांच है सोशल साइंस का जो पास्ट की स्टडी के लिए काफ़ी यूजफुल है हमें पास्ट में जो भी थिंग्स थी उसको जानना है तो हमें हिस्ट्री को पढ़ना होगा. सो लेट्स स्टार्ट अवर हिस्ट्री पोर्शन. Okay, so first of all, here we have one activity. So, some words that refer to the past. So, read the paragraph below and not the words that refer to the past. यहाँ पर एक पैराग्राफ है और हमें इस पैराग्राफ में से जो भी पास्ट के वर्ड है उसको जानना है, उसको अंडरलाइन करना है. सो मैं ये पैराग्राफ पढ़ के दिखाता हूँ. सो yesterday's pet adoption camp by Faizan's family, so many more pets getting adopted as compared to last year. Every year, his family organizes a pet adoption camp on the day of Eid. Long, long ago, his great grandmother had adopted an injured puppy from the streets on Eid. She took care of him and he stayed with her till the she passed away. So this is paragraph and हमें क्या करना है, find the words that related to past. Past के related जो भी word है उसको find करना है. So यहाँ पर हमें 3 word देखने को मिल रहे हैं like yesterday, it is also related to past, then last year, then long long ago. These all words are related to past. So your right answer are yesterday, last year and long long ago, the words that refer to the past. Then let's see about practice question 1.1. So here question is, arrange the terms yesterday, last year and long long ago on the timeline below. आपकी सप्लीमेंट्री बुक में जहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.1 है, यहाँ पर आपको ये आंसर लिखने होंगे विद द यूजिंग ऑफ पेंसिल. पेंसिल से आपको आंसर लिखने हैं, नॉट यूजिंग ऑफ बॉल पेन और पेन. सो लिस्ट रिसेंट, रिसेंट एंड मोस्ट रिसेंट. सो आपको पता होगा यस्टरडे मीन्स अभी 24 आवर का ही टाइम हुआ है, कल की ही बात है. सो दिस इज मोस्ट रिसेंट टाइम. देन लास्ट ईयर की बात करें तो 1 साल पुराना, 1 साल पीछे की बात है. सो दिस इज अ रिसेंट टाइम. एंड लॉन्ग लॉन्ग अगो काफ़ी सारे ईयर्स अगो की बात है. सो दिस इज लीस्ट रिसेंट. सो यहाँ पर आपको राइट आंसर लिखने हैं मोस्ट रिसेंट में यस्टरडे, रिसेंट में आपको लिखना है लास्ट ईयर एंड लीस्ट रिसेंट में आपको लिखना है लॉन्ग लॉन्ग अगो. Okay, so let's learn about summary. So we now understand that history, which falls in social sciences, help us study different period of the past. So हमें ये पता चल गया कि history हमें past के different period को study करने के लिए help करती है. So we can also now say that long long ago, last year and yesterday refers to the period of the past. Yes, ये सभी वर्ड्स पास्ट से रिलेटेड है और जब भी हम हिस्ट्री की स्टडी करेंगे तो ये वर्ड हमें देखने को मिलेंगे. देन 10 इफ वी वांट टू आंसर क्वेश्चंस लाइक
what happened long ago we need to study history। और अगर हमें ये क्वेश्चन का आंसर जानना है कि what happened long ago यानी कि long ago टाइम के पहले क्या हुआ था, ये हमें जानना है तो हमें हिस्ट्री की स्टडी करनी होगी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री। देन नेक्स्ट हम एक एनिमेटेड वीडियो देखेंगे। मैं एक वीडियो स्टार्ट करूँगा, आप इस वीडियो को काफ़ी केयरफुली वॉच कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर मेन टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट वन एनिमेटेड वीडियो। Why should we study history? Have you ever wondered why we should study the past? What do ancient cavemen, queens, and kings have to do with our lives today? Let's find out. Studying the past helps us understand where we come from and how the society we live in came into existence. For example, through the study of history, we know that humans evolved from apes over millions of years. Not just humans, everything around us, including machines and food, have their own history. For example, to understand tablets better, we must know the history of computers. History of modern-day cars can be traced right to the time of invention of the wheel and cars. The biryani that we relish today was brought to India during the time of the Mughals. History helps us understand the mistakes people made in the past to avoid repeating them. Like, we know wars result in loss of lives and great destruction. This has helped us create global peace policies and organizations like the United Nations to promote international cooperation. History also gives us glimpses of acts of kindness and inspiration. For example, in 1848, Savitribai Phule and her husband Jyotiba Phule opened the first girls' school in Pune. They went on to play an important role in empowering women in India during the British rule. Talking about inspiration, some of the old architectural monuments have inspired the field of architecture today. Chhatrapati Shivaji International Airport is inspired by the traditional Indian pavilions of the past. Some people love history so much that they take it up as their profession. For example, historians are people who study the past. Archaeologists excavate ancient sites to find relics like bones, pottery, and tools and weapons from the past. Archivists are people who collect, organize, and preserve historical information. Museum curators are people who manage museums with historical items and artifacts. History teachers are people who teach history. All these people ensure that all of us know and learn from history. Studying history is exciting and fun. Let's enjoy our studies this year as we travel back in time and learn about the past. ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। वंस अगेन मैं इस वीडियो में जो भी कोई कंटेंट है उसको मैं रिपीट करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री को स्टडी क्यों करना है। सो इसका आंसर ईजी है। इसका आंसर ये है कि हमें हमारे पास्ट के बारे में जानना है। लाइक पास्ट में क्या हुआ था, कैसे हमारी लाइफ चेंज हुई, किस तरीके से हमारी लाइफ स्टाइल बदली, किस तरीके से पास्ट में पीपल थे वो अपनी लाइफ स्पेंड करते थे, ये सभी हमें जानना है तो हमें हिस्ट्री को पढ़ना होगा। सो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था कि हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट। सो इसीलिए हमें हिस्ट्री की पढ़ाई करनी, हिस्ट्री को स्टडी करना ज़रूरी है।
देन यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वेयर वी कम फ्रॉम, हाउ अवर सोसाइटी केम इन टू एग्जिस्टेंस। ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के रिलेटेड है कि अगर हमें ये पता होगा कि हम कहाँ से आए हैं तो उसको पता लगाने के लिए हमें हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। देन हाउ अवर सोसाइटी केम इन टू एग्जिस्टेंस, लाइक हम अभी हमारी सोसाइटी में रहते हैं तो हम ये जो सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ, देन ये सभी कहाँ से आया, ये सभी को हमें पढ़ना होगा, ये सभी को हमें जानना होगा। देन यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ह्यूमंस एग्जिस्टेंस दैट सीन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले एप्स थे, एप्स में से धीरे धीरे ह्यूमन का एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ। तो अगर हमें ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है, ह्यूमंस के बारे में हमें जानना है तो हमें एप्स के बारे में भी जानना होगा। धीरे धीरे उसका किस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, ये सभी प्रोसेस को हमें जानना होगा। सो इसीलिए हमें हिस्ट्री की स्टडी करनी होगी। लाइक एप्स क्या करते थे, देन ये सभी ट्राइब है, ये सभी किस तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करते थे, इसको हमें जानना है तो हमें हिस्ट्री की स्टडी करनी होगी। एंड ह्यूमन की तरह सभी थिंग्स जो हमें अभी देखने को मिल रही है, ये सभी थिंग्स की अपनी हिस्ट्री होगी। लाइक मोबाइल की बात करें तो मोबाइल किस तरीके से बना, पास्ट में मोबाइल कैसा होता था, आज मोबाइल कैसा है, उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। देन सभी फूड की बात करें तो ये फूड का ओरिजिन कहाँ से है, मीन्स वो कब स्टार्ट हुआ। देन मोटर बाइक, ये सभी अपनी एक ओन हिस्ट्री है ये सभी थिंग्स की। सो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि अगर हमें टैबलेट के बारे में जानना है, हमारे मोबाइल फ़ोन के बारे में जानना है तो हमें उसकी हिस्ट्री देखनी होगी। लाइक 1916 में कंप्यूटर कैसे थे, इंस्ट्रूमेंट कैसे थे, देन 1917, 1980, 1990, देन 2000 में लैपटॉप आए, देन 2010 में अभी हमें मोबाइल, टैबलेट, ये सभी देखने को मिल रहा है। सो अगर हमें टैबलेट को पढ़ना है, टैबलेट के बारे में जानना है तो हमें उसकी हिस्ट्री भी पढ़नी होगी। सो इसको हम क्या कहेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की हिस्ट्री। देन हमें कार्स के बारे में जानना है कि आज हम देखते हैं कि काफ़ी कार्स का फॉर्मेशन काफ़ी बदल गया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इन 3500 BC ओनली एक व्हील था, व्हील में से हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया कार को बनाना, और आज हम 2020 में देख रहे हैं ऑटोमेटिक कार भी आ गई है। लाइक ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक कार हमें देखने को मिल रही है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम टू टाइम होता रहता है, और अगर हमें कार के बारे में जानना है तो हमें उसकी हिस्ट्री जाननी होगी। लाइक 1900 में क्या सिचुएशन थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हम क्या व्हीकल यूज़ करते थे। देन 3500 BC में एक व्हील का इन्वेंशन हुआ, और इस व्हील में से ही कार का इन्वेंशन हुआ, कार का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो ये सभी हमें जानना है तो हमें हिस्ट्री की ज़रूरत होगी। देन हिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड द मिस्टेक्स पीपल मेड इन द पास्ट। सो हिस्ट्री से हमें ये भी पता चलता है कि एंशियंट टाइम में एंसेस्टर्स ने, पीपल ने क्या मिस्टेक की थी, और ये मिस्टेक को हम रिपीट भी नहीं करेंगे। लाइक कई सारी बिग वॉर हुई, लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इससे कई सारे पीपल की डेथ हुई थी। तो ये मिस्टेक रिपीट ना हो ये भी ज़रूरी है, तो हमें ये मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है तो हमें हिस्ट्री की पढ़ाई करनी होगी। दैट्स वाई हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। देन हमारी इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी जी, देन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सभी काफ़ी फेमस पर्सन थे हमारे इंडियन हिस्ट्री के। ये सभी के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। देन हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि पास्ट के टाइम में कैसे पीपल अपनी लाइफ स्पेंड करते थे। लाइक 1887 की एक इवेंट है कि पुणे एक रीजन था, वहाँ पर इंडिया की फर्स्ट गर्ल्स स्कूल एस्टैब्लिश हुई थी बाय सावित्री बाई फूले। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि
उस टाइम पे भी वुमेन एम्पावरमेंट काफ़ी फेमस टॉपिक था, और आज भी वुमेन एम्पावरमेंट काफ़ी ज़रूरी है इन द इंडिया। तो ये सभी इवेंट हमें हिस्ट्री से पता चलती है, और हम इस हिस्ट्री की इवेंट में से इंस्पायर भी होते हैं और इसको हमारी लाइफ में भी रिपीट करते हैं। देन हिस्टोरियन की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोरियन? जो भी पर्सन जिसको हिस्ट्री का नॉलेज है, इसको हम कहेंगे हिस्टोरियन। लाइक मेरे पास हिस्ट्री का नॉलेज है तो मैं एक हिस्टोरियन कहलाऊंगा। सो इसी तरीके से हमारे इंडिया में फेमस हिस्टोरियन थे लाइक रामचंद्र गुहा। ये काफ़ी फेमस हिस्टोरियन थे हमारे इंडिया के। देन रमीला थापर, ये भी फेमस हिस्टोरियन थी हमारी इंडिया की। सो यहाँ पर हिस्टोरियन की डेफिनेशन क्या है? हिस्टोरियन इज द पीपल वो स्टडी द पास्ट। हिस्टोरियन क्या है? जो पास्ट की स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोरियन। देन यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट है, तो आर्कियोलॉजिस्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू हिस्ट्री। सो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? एक्सकेवेट एंशियंट साइट्स एंड स्टडी देम। जो भी काफ़ी पुरानी साइट है उसका एक्सकेवेशन का काम करते हैं, और उसमें से भी स्टडी करते हैं कि पास्ट के टाइम में एंशंट साइट्स में हमें काफ़ी हिस्ट्री की स्टडी करने को मिलेगी। सो दिस इज आर्कियोलॉजिस्ट। ये काम कौन करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। देन आर्किविस्ट ऑल्सो रिलेटेड टू हिस्ट्री, और वो क्या करते हैं? दे कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड प्रिजर्व हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। सो आर्किविस्ट की बात करें तो ये भी हिस्ट्री की काफ़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को कंजर्व करने का काम, कलेक्ट करने का काम करते हैं आर्किविस्ट। देन नेक्स्ट है म्यूजियम क्यूरेटर। म्यूजियम क्यूरेटर ऑल्सो related to history, so they manage a museum with historical items and artifacts। so म्यूजियम जहाँ पर काफ़ी एंशंट कोई भी थिंग होगी तो उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, तो म्यूजियम क्यूरेटर ये सभी थिंग्स को मैनेज करने का काम करते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू हिस्ट्री। देन हिस्ट्री टीचर की बात करें, हिस्ट्री टीचर आपको क्या स्टडी कराते हैं? हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री टीचर्स टीच हिस्ट्री टू द स्टूडेंट्स। सो अभी मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपका एक हिस्ट्री टीचर कहलाऊंगा। सो हिस्ट्री टीचर इज ऑल्सो रिलेटेड टू हिस्ट्री सब्जेक्ट। देन यहाँ पर 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हंटिंग गैदरिंग, बुक्स एंड बुरियल्स, देन बिल्डिंग्स एंड पेंटिंग्स, किंगडम्स एंड किंग्स एंड अर्लीस्ट सिटीज़। तो ये सभी पॉइंट्स हिस्ट्री के हैं, और हम सभी पॉइंट्स का डिस्कशन हिस्ट्री पार्ट में करने वाले हैं। लाइक एंशियंट टाइम पे हंटिंग की प्रोसेस होती थी। देन बुक्स एंड बुरियल्स की बात करें तो काफ़ी सारी बुक्स है जो हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। देन एंशियंट टाइम में बिल्डिंग्स कैसी थी, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स का भी डेवलपमेंट हुआ था, काफ़ी सारी फेमस पेंटिंग्स हमें एंशियंट टाइम में देखने को मिलती है। देन किंगडम्स एंड किंग्स, लाइक कई सारी फेमस किंगडम्स थी और उसके फेमस एंड ब्रेव किंग्स थे। देन अर्लीस्ट सिटीज़, जो भी कंट्री है उसके अर्लीस्ट सिटीज़ कौन से थे, ये सभी हम हिस्ट्री पार्ट में पढ़ने वाले हैं। So this is about animated video. I hope you understood very well from the video, and let's move to our next topic. Our next topic is one past or many past. Why do you think the title of our history textbook is Our Past, not Our Past? So अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी तो उसमें हिस्ट्री में टाइटल होगा अवर पास्ट। यहाँ पर पास्ट के साथ में एस जुड़ा हुआ है, एंड हम ओनली अवर पास्ट नहीं पढ़ते, बट टेक्स्ट बुक में लिखा होता है अवर, PAST। तो ये क्यों लिखा होता है? क्यों ऐसा नहीं होता ओनली अवर पास्ट? सो रीज़न क्या है कि अवर पास्ट refers to the past of different group of people। पास्ट में डिफरेंट ग्रुप थे पीपल के, और ये सभी की हम एक हिस्ट्री के पार्ट में ही उसकी स्टडी करते हैं। इसीलिए हम उसको पास्ट ना कहते हुए उसको हम एस से डिनोट करेंगे और उसको हम कहेंगे अवर पास्ट। लाइक
many past, not only one past of the people. Like many people in Andaman Nicobar Islands hunt, fish and collect forest produce to live. अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें, वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, फिश खाते हैं और फॉरेस्ट प्रोड्यूस में से अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं. बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे पीपल इन सिटीज़ गेट देयर फूड. और सिटी एरिया में हम बात करें तो हम हमारा घर का खाना खाते हैं, लाइक वेजिटेबल फूड फूड पे हम डिपेंडेड होते हैं, हम कहीं हंटिंग करने नहीं जाते. सो दिस way is different from the Andaman Nicobar Island people. So, such differences would have existed in the past as well as. So, हम कह सकते हैं कि पास्ट में जो भी पीपल थे, ये सभी में काफ़ी डिफरेंसेस थे. लाइक ये सभी अपनी लाइफ डिफरेंट वे से स्पेंड करते थे और इसी के कारण हम अवर पास्ट बोलते हैं. पास्ट लाइक PAST रिफर्स करते हैं, नॉट अवर ओनली पास्ट. Then our past also tell us that history is about the lives of ordinary people as much as it is about the lives of kings and queens. सो आवर पास्ट ये टॉपिक में हम जो भी ऑर्डिनरी पीपल है, कॉमन पीपल है, उसकी भी हिस्ट्री पढ़ेंगे और साथों साथ किंग्स एंड क्वींस उसकी कैसी लाइफ थी, ये सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. So, kings and queens kept record for their victories in the battles, and ordinary people usually did not keep records of what they did. So, जनरली पास्ट में हमें देखने को मिलता है कि किंग्स होते हैं, क्वींस होते हैं, ये सभी रिकॉर्ड रखते हैं. लाइक जब भी वॉर होगी, बैटल होगी, उसमें विक्ट्रीज होगी, तो ये सभी रिकॉर्ड्स को सेव करके रखते हैं किंग्स एंड क्वींस. बट ऑर्डिनरी पीपल की बात करें, ऑर्डिनरी पीपल मीन्स कॉमन मैन, ये सभी कोई रिकॉर्ड नहीं सेव करते, कोई रिकॉर्ड नहीं बनाते और ये सभी अपनी लाइफ काफ़ी इजीली, काफ़ी कॉमनली स्पेंड करते हैं. बट किंग एंड क्वींस की लाइफ हम देखें तो काफ़ी रॉयल लाइफ होती है. सो ये डिफरेंस है किंग एंड क्वीन और ऑर्डिनरी पीपल में. सो ये पॉइंट में से हमें एक क्वेश्चन मिला है कि वाई डू यू थिंक ordinary men and women did not generally keep records of what they did. So, क्यों ऑर्डिनरी मैन एंड वुमन अपने रिकॉर्ड से उसको सेव नहीं रखते, उसको क्यों नहीं लिखते? इसके रीजंस ये है कि दे लेड अ वेरी सिंपल लाइफ स्टाइल्स. ऑर्डिनरी पीपल काफ़ी सिंपल उसकी लाइफ होती है. लाइक सुबह उठते हैं, काम करते हैं, खाना खाते हैं, देन शाम को वापस सो जाते हैं. लाइक उसकी लाइफ में कोई इवेंट नहीं होगी. लाइक किंग की बात करें तो उसकी लाइफ में काफ़ी सारी इवेंट्स हैं. वॉर लड़ते हैं, उसमें विक्ट्री हासिल करते हैं, कभी कभी उसको हार भी मिलती है, तो उसकी लाइफ काफ़ी इवेंटफुल है. बट कॉमन मैन, ऑर्डिनरी मैन की लाइफ काफ़ी सिंपल है. हर रोज़ एक ही लाइफस्टाइल हमें देखने को मिलती है. देन दे माइट हैव नॉट नोन हाउ टू रीड एंड राइट. कभी कभी हम बात करें कि ऑर्डिनरी पीपल है, उसको किस तरीके से लिखना है, रिकॉर्ड किस तरीके से लिखना है, उसको पढ़ना है, ये उसको नहीं पता होता. तो इसका भी एक रीज़न है कि इस रीज़न से ये सभी रिकॉर्ड है ये मेंटेन नहीं करते. देन दे माइट हैव हैड टू वर्क सो हार्ड दैट दे डिड नॉट हैव टाइम टू रिकॉर्ड देयर लाइव्स. एंड ये भी एक रीज़न हो सकता है कि पूरे दिन उस सभी को काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना काम में स्पेंड करना होता है. लाइक ये काफ़ी हार्ड वर्किंग करते हैं. सो उससे क्या होगा कि उसको कोई टाइम नहीं मिलेगा रिकॉर्ड बनाने का. लाइक पूरे दिन फील्ड में काम करते हैं और रात को काफ़ी थक जाते हैं. सो उसके लिए उसके पास कोई टाइम नहीं होगा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, उसके पास टाइम की कमी होगी. सो उसके कारण भी हम कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी मैन एंड वुमन डिड नॉट जनरली कीप records of what they did. बट किंग एंड क्वीन की बात करें, उसके पास टाइम है,
उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खाना नहीं बनाना है, कोई अदर वर्क नहीं करना, सिर्फ उसको एडवाइस देनी है पीपल को, पर्सन को, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करनी है। जब भी वॉर होगी तो अपने सोल्जर्स को लीड करना है, ये सभी वर्क होता है किंग का। सो हम कह सकते हैं कि किंग के पास इनफ टाइम है रिकॉर्ड को मेंटेन करने का, बट ऑर्डिनरी मैन एंड वुमन डिड नॉट हैव टाइम फॉर कीप records. Then next point, let's learn about difference between kings and farmers. Like दोनों की लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम देखते हैं. So kings led a luxurious life. Luxurious life means काफ़ी अच्छी लाइफ स्पेंड करते हैं किंग्स. लाइक उसको कोई अदर हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है. किंग्स सिर्फ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करते हैं, अपनी आर्मी को लीड करते हैं, अदर कोई उसको वर्क नहीं होता. बट फार्मर्स वर्कड वेरी हार्ड इन द फील्ड. फार्मर पूरे दिन अपने फील्ड में, अपने फार्म में वर्क करता है, पसीना बहाता है. देन किंग्स लेड देयर आर्मीज इन द वॉर. किंग का एक मेन वर्क है, वो अपनी आर्मी को लेड करता है इन द वॉर. बट फार्मर्स प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स फॉर देयर फैमिलीज एंड द पीपल. बट फार्मर का काम है कि उसको क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना है और अपनी फैमिली और अपने जो विलेज के पीपल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मर के पास होती है. देन किंग्स केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ देयर बैटल्स एंड विक्ट्रीज. किंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसकी जो भी बैटल्स होगी, विक्ट्रीज होगी, ये सभी के रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम करते हैं किंग्स. बट फार्मर्स डिड नॉट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ देयर डेली लाइफ बिकॉज फार्मर वर्कड वेरी हार्ड इन द फील्ड. दैट्स वाई दे डोंट हैव इनफ टाइम फॉर द कीपिंग रिकॉर्ड. और इसी के कारण फार्मर्स डिड नॉट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ देयर डेली लाइफ. Then last question of the day, practice question 2.1. So write any three advantages of studying history. हिस्ट्री की स्टडी करने के एडवांटेजेस आपको बताना है. सो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेयर वी कम फ्रॉम, दैट इज फाइंडिंग आवर ओरिजिन्स. पहला तो हमें ये पता चलता है कि हमारा ओरिजिन कहाँ से है. हम अभी मैन है तो मैन किस में से बना. लाइक ये हमें पता चल गया है कि हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा ओरिजिन एप में से हुआ है. एप में से धीरे धीरे हम मैन की ओर आगे बढ़े. देन इट हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग हाउ थिंग्स हैव इवॉल्व. हमें इससे ये पता चलता है कि आज कंप्यूटर है तो कंप्यूटर किस तरीके से आया, उसका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ. हमारे पास कार है तो कार का ओरिजिन क्या था, कैसा पास्ट में ऐसी एक्टिविटी हुई कि कार की ज़रूरत पड़ी. तो ये सभी थिंग्स हमें हिस्ट्री में पता चलती है. देन लास्ट, it helps us learn from the experiences of the people of the past, not repeat the same mistake. हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि पास्ट में जो भी पीपल थी उसकी लाइफ कैसी थी, उसने अपनी लाइफ में क्या क्या मिस्टेक की, और हम फ्यूचर में ये मिस्टेक में से काफ़ी ज़्यादा लर्न करेंगे. हम अगेन ये रिपीट नहीं करेंगे ये मिस्टेक्स को. तो ये सभी थिंग्स हमें हिस्ट्री में से पता चलती है. And practice question 2.2, fill in the blank. Blank is the study of the past. So right answer is history is the study of the past. So this is about our first video lecture of the history. I hope you understood very well about introduction of the history, and if you have any doubts regarding this topic you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video we will move further in the history. तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.